Welcome to Psychic Healing by Swabhi, and my name is Swati Kalya Srivastava. I'm a psychic healer. I do tarot reading, Akashic reading, and automatic writing, and also pranic healing. Welcome to my channel, Psychic Healing by Swabhi. Please do subscribe to this channel for more content like this, guidance जो मैं आप सब के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट करके वाया टैरो डेक लेकर आती हूँ. सो आई एम बैक विद गाइडेंस फॉर यू ऑल फॉर दिस इंटायर मंथ ऑफ मे विद रिस्पेक्ट टू योर ज़ोडिएक साइंस. बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हर एक ज़ोडिएक साइन का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. तो रादर देन गोइंग थ्रू द इंटायर वीडियो, आप क्या कर सकते हैं कि आप उस टाइम स्टैम्प पे जाकर अपने ज़ोडिएक साइन से स्पेसिफिक मैसेज या गाइडेंस देख सकते हैं. And also do feel free to follow me on Instagram and Facebook. The pages and the links are mentioned in the description box. Thank you so much everyone for watching this. I'd like to tell you, आप ये वीडियो देख रहे हैं, that means कि आपकी एनर्जी के साथ टैरो ने कनेक्ट किया है, and at the same time the tarot because connects with universe, the source of light, the source of energy. हम सब एनर्जी ही हैं, right? So आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके टैरो ने यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए जिस भी तरीके की एनर्जी मे मंथ में आती दिख रही है, बेसिस योर प्रेजेंट एनर्जी एंड योर पास्ट एनर्जी, उसके हिसाब से आपके लिए मैसेजेस हम यहाँ पर डिकोड करेंगे. एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू. So do keep me posted about any sort of feedback or any sort of an idea in terms of the content or guidance जो आप future में देखना चाहते हैं. Any which ways I'm happy to do it for you. And for any one-on-one tarot reading, Akashic reading or automatic writing, please do connect or go to my website which is www.psychichealingbyswabi.com. वहाँ पर जाकर आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं या Instagram पे या Facebook पे मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, and I'll be happy in in terms of getting in touch with you and conducting a one-on-one session with you. So let's not delay this and get into the messages that universe is holding on for you for the month of May 2025. So for Aries, let's see what universe is showing for you, Aries, for the month of May 2025. So basically universe ने मुझे Page of Pentacles, the Magician, the Devil ये दिखाया है, एंड न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से इट्स नंबर 1, नंबर 5 एज इन 1 + 5 6 ऑल्सो. सो न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और अबंडेंस भी है, बट हम इन मैसेजेस को डिकोड करते हैं वन बाय वन. मैसेज नंबर 1, ऐसा लग रहा है दैट यू आर थिंकिंग टू परस्यू समथिंग लाइक समथिंग न्यू, लाइक अ कोर्स और बिजनेस आइडिया और न्यू फील्ड और अ न्यू जॉब, मतलब कुछ एक्सपेंशन से रिलेटेड है. यहाँ पर प्रोफेशनली वट एवर इट इज़, यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रहा है दैट इट्स बैंग ऑन, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन इट, एग्जीक्यूट, जस्ट डोंट ओनली थिंक अबाउट इट. It's time to work on the same and you're going in the right direction. अगर आप किसी hint का wait कर रहे हैं, whether you're going in the right direction or not, it is right, and financially it's going to add a lot more in the coming time. Number 2 message. Also it seems कि यहाँ पर कोई नई बिगिनिंग है. आपको अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए कि आपके अंदर ना इनफाइनाइट कैलिबर है. जब भी आप डाउट में हो तो यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप एक्चुअली ना कोई भी चीज़ कर सकते हैं लाइफ में, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो. यू वर्क लाइक अ मजिशियन, यू कैन complete any sort of a task if you challenge yourselves. Or in the month of May, you need to keep your faith intact, within yourself. You will have everything on the table, चाहे finance हो, चाहे emotional support हो, चाहे decision making हो, growth हो, सब कुछ आपकी control में ही है, and it is going to be a beautiful opening for you, beautiful beginning for you. कोई नया project भी हो सकता है आपके लिए. Number 3, from family perspective say, it seems that the dream that you have, to have an ideal time when you are there with your family and things like that, वहाँ पर ऐसा लगता है कि somebody is trying to do कुछ planning और plotting ताकि आपको ना उस तरीके का जो mental peace आप deserve करते हैं वो आपको ना मिले, intentionally making it difficult for you to survive. अब चाहे ये professional reasons में भी हो सकता है, professional ground में भी हो सकता है और personal ground में भी हो सकता है आपके लिए.
आप उस एक्सटेंट तक होगा कि आपको ये लगेगा कि आप you just leave and move on. You really don't want to be in that situation or in that equation. Someone with that devil sort of an energy is around you, is trying to influence, और maybe आपके लिए चीज़ें difficult करने की कोशिश हो रही है. आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, बिकॉज एक मेल और एक फीमेल आपस में ही जो साथ में हैं उनकी अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग दिख सकती है. तो आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है ये चीज़. एंड इट कुड बी somebody from an opposite gender, like a friend or a colleague. So you have to be careful for that person. So for Taurus, May month comes up with King of Wands, 5 of Wands, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles. So ideally यहाँ पर 3 से ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, तो यूनिवर्स आपको मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहा है. न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से होप, लव, अपॉर्चुनिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यू बिगनिंग, एश्योरेंस, ये सारे कीवर्ड्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. बट एट द सेम टाइम अगर हम मैसेजेस डिटेल में डिकोड करें तो नंबर 1 मैसेज है दैट यू विल बी हैविंग अ ग्रेट होल्ड ऑन व्हाट यू डू, लाइक ग्रेट एनर्जी विद विच यू विल बी डीलिंग विद एवरीथिंग. मतलब आप अपना थ्रोन ओन करते हैं, आपका ग्रोथ एस्पेक्ट, वर्क, सब कुछ आपके कंट्रोल में है. जस्ट दैट आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखना है. यू आर अ गुड कम्युनिकेटर इन विच वेज. नंबर 2, बिवेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद पीपल अराउंड यू. मतलब स्पेसिफिकली फीमेल है हु विल बी क्रिएटिंग टफ सिचुएशंस एंड समहाउ लुक्स लाइक दैट पर्सन वांट्स टू अचीव समथिंग. मतलब कुछ पर्सनल एजेंडा है, और इट कुड बी दैट शी इज डिफेंडिंग यू और टेकिंग योर साइड, विच विल सर्टनली बी क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ क्योर्स. So but you look okay and winning end of the day. Number 3, your leader or the authority you work with will give you whatever you've been demanding, asking or requesting. It's a moment, और ये कुछ opposite भी हो सकता है. मीन्स कि आप भी authority की स्टेट में जा सकते हैं जहाँ आप डिमांड कर रहे हैं, आप सामने वाले की विशेस को फुलफिल कर रहे हैं. It's a moment where you will be having hope alive, keeping your hope alive and with some opportunity. More of this where you will be getting a chance to achieve things materially. Lastly, someone's arrival. If not done yet, someone who's going to open the doors for abundance, of abundance for you. किसी की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में, या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और अभी तक पिक्चर में आई नहीं है, या वो एक कोई न्यू इंडिविजुअल है जो विल कम इनटू द पिक्चर इन द मंथ ऑफ मे, जो आपको आपकी जो भी ड्रीम है अबंडेंस की, जो आपकी डेफिनेशन है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, विल कम ट्रू एज फार एज योर फाइनेंशियल लाइफ इज कंसर्न, योर प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेट. आपका गाइडिंग एंजल आपके अराउंड ऑलरेडी है. So you just wait for that person to approach you. Something amazing is definitely going to happen this month, like news, information. कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ में abundance ऐड करेगा, and you will realize कि manifestations actually में true होती हैं अगर आप dedicatedly manifest करें. और manifestation अकेले नहीं होता है, surrender भी hand in hand चलता है. manifest करके उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप सिर्फ visualize कीजिए, surrender कीजिए, everything will fall into place for you. So for Gemini, the month of May comes up with the Moon, the Emperor, 3 of Swords, 4 of Cups, 10 of Swords. So many cards, jumped out of the deck for you. Numerology perspective से मैं बात करूँ Gemini के लिए, तो ये new beginning का एक some sort of a new beginning is there. Balance है, financial abundance है, stability है, assurance है. But let's decode the messages in detail. Number 1, energy perspective से ऐसा लग रहा है कि ना आपके दिल और दिमाग में कोई डर है. Like it could have been, it could be that you're sad due to someone's behavior around you, or for some of you looks like you're disturbed due to politics or people plotting things against you. Now here, trust me, it's a sign from universe कि आप अकेले नहीं हैं. आपका गाइडिंग एंजल आपके साथ है. यू डोंट हैव टू बी वरीड एट ऑल, यू डोंट हैव टू हैव दैट वरी एट ऑल इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स. अगर बुरा समय भी है, कीप योर हार्ट अ लिटिल होपफुल एंड पॉजिटिव हियर. एट द सेम टाइम टेक चार्ज ऑफ हु यू आर. अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको आपकी बात आगे रखनी है तो आप रखिए. You stay strong like a king. Take a stand for yourself and don't let the fear win over you. ये मत सोचिए कि अगर मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग
होगी नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी चल रही है। जो सिचुएशंस हैं, जो आप सैड हैं, वो तो आपको पता ही है। जो भी आपको अंदर से लग रहा है वो बिल्कुल राइट है। जस्ट स्पीक योर माइंड, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। बट मोस्टली प्रोफेशनली, जैसा मैंने अगेन कहा, you need to take a stand, take decisions, be bold and fearless, unapologetic, be you. Okay, number 3, it might break your heart, but once you do it, जैसा मैंने बोला, is when the cycle reverses. You will be receiving the reasons. Universe आपको reasons देगा celebration की, to have good time with people around you. Stability will also come, hand in hand. At the same time, someone will certainly be offering you something here. मतलब आपको थोड़ा सा vigilant रहना है, अपने eyes open रखिएगा. Don't be busy looking at what you have and what's your expectation. Instead, look around with open eyes. अपने ears और अपनी eyes open रखिएगा. Don't miss out on this opportunity. Number 4 बार बार आ रहा है. That means कि कुछ financial abundance, financial opportunity आपके सामने आने वाली है in the month of May. Lastly, you have come a long way. जो आपको betrayal की feeling है, tough time is going to end. You're just reaching the end of this phase, and don't give up. Look at the side which is bright, and certainly you will be receiving something new soon. Could be in the month of May, like a new beginning for you. It is add-on. So Cancer, May 2025 comes up with Temperance, which is number 14, the Star number 17, 3 of Wands, Strength, which is number 8. तो न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से अगेन अगर मैं कीवर्ड्स शेयर करूँ तो न्यू बिगिनिंग्स है, फिनेंशियल अबंडेंस है, थोड़ा सा आपको होप रखने की तरफ इंडिकेशन है, द सेम टाइम स्टेबिलिटी एंड पेशेंस है. सो नंबर 1 मैसेज फॉर कैंसर, ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से इनडिसिसिव हैं, कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज़ के बारे में, लाइक यू आर अनेबल टू मेक अप योर माइंड, थिंकिंग अ लॉट, whether choose 1, choose 2, go this way, that way. Mostly it's about something new, like an opportunity which involves financial abundance. यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, और एट द सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि ना इमोशनली इट्स ऑल ओवर द प्लेस. सो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि डोंट हैव कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स राइट नाउ, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए सही हैं. नो मैटर व्हाट यू पिक, एंड ऑफ द डे जो भी आउटकम आप अचीव करना चाहते हैं, विद दैट यू विल एक्चुअली अचीव द सेम. इट्स जस्ट दैट right now it's time for you to relax, keep give a pause to your mind which is working endlessly. Number 2, you're going to be a star this month, like milestones, achievements. Looks like या तो 2 रोल आपके सामने हैं या 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने. जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं अभी इस पॉइंट इन टाइम में, फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी कि आप 2 रोल्स में या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शाइन करें, या 2 मेजर प्रोजेक्ट्स में आप शाइन करें, या 2 मेजर प्रोजेक्ट्स आप क्रैक करें, या क्लाइंट्स क्रैक करें. इट्स जस्ट द बैलेंस विच इट विल एड ऑन, just telling you to carry on with whatever experience it's adding on. At the same time, जो पीछे आपको पास्ट में बेटर एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं ना, उन सबको पॉजिटिवली आप लेकर आगे बढ़ते जाइए. 2 न्यूज़, लाइक नंबर 2, लाइक 2 आपके पास न्यूज़ फॉर श्योर आने वाली है इस महीने, जो कि अमेजिंग होगी. नंबर 3, सम ऑफ यू सम प्लानिंग टू मूव अब्रॉड का कुछ प्लान चल रहा है, या फिर कुछ डिफरेंट प्लेस में आप मूव करने की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग योर वर्क. और अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं अबाउट मूविंग और नॉट मूविंग, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अभी इस पॉइंट इन टाइम में ना आप जहाँ हैं वहाँ पे आप परफेक्टली अलाइंड हैं, परफेक्टली सेटल्ड हैं. कोई भी डिसीजन आप हरी में मत लीजिएगा. हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के अच्छे से नाप तोल कर देख कर ही डिसीजन लीजिएगा. कीप पेशेंस, चैनलाइज योर इनर रेस्टलेसनेस, एंगर. अगर कोई भी नेगेटिव इशू है, नेगेटिव इमोशन है, आप तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, बिकॉज व्हेन यू रिएक्ट थिंग्स कैन गो haywire. So you will be getting the balance back in your life in this month if you're meditative and you're spiritual. So for Leos, May month comes up with the Magician, 8 of Pentacles, Page of Cups, Ace of Cups. न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से न्यू बिगिनिंग है, बैलेंस है, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड. So let's decode the messages in detail for Leos. Message number 1,
ऐसा लग रहा है that you know you're going to prove your mettle to everyone around you. You can turn around anything or everything. There is a new beginning for you in the month of May for sure, and it's a month of amazing outcome for you. You will have something in your hand, could be, you know, the manifestations that you've been doing would come true, and people will be in awe of you. Control over, you know, you will have control over all the aspects in your life. It's a win for sure. Number 2, continue to work hard, improve your craft. आप focused रहिए, just work in the direction where you're doing. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, doing great. Universe is telling you to continue to do so. Continue doing the work that you're doing. You know, for example, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब ढूंढिए, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो करते जाइए, मेहनत करिए, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आप माइलस्टोन तभी हिट करेंगे अपने एजेंडा में जब आप विदाउट एनी डाउट आप राइट डायरेक्शन में जाते हुए हार्डवर्क करते जाएंगे, एंड यूनिवर्स हियर इज बैकिंग यू, सो यू आर डूइंग अ फैब जॉब फॉर श्योर. Number 3, you're going to land up something amazing, जैसा कि मैंने कहा, और hit a milestone. मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ ऑफर भी आ सकता है आपके पास, कोई ग्रेट न्यूज़ आ सकती है इन द मंथ ऑफ मे. ये मैजिकल मंथ है आपके लिए, क्योंकि मजिशियन भी है और एस ऑफ कप्स भी है. सो फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी अ प्रपोजल और वॉट एवर यू बीन वर्किंग ऑन रिलेटेड टू द सेम. कुछ टर्न अराउंड तो ज़रूर होने वाला है आपकी लाइफ में. At the same time, जैसा मैंने बोला, you will be getting an opportunity to discuss, you know, something with someone, like a new idea. अगर आपके माइंड में कोई आइडिया चल रहा है जिससे आप डीपली कनेक्टेड हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसी डायरेक्शन में वर्क करने के लिए with someone which can be of great help. तो आप एग्जीक्यूट करिए, मेहनत करिए. जो आइडिया आपके माइंड में है, चाहे वो बिजनेस आइडिया हो, कोई नया रोल हो, कोई नई फील्ड हो जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ आप करना चाह रहे हैं, बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि मे लुक्स ग्रेट एंड this is something which is connecting with you emotionally. So just do it. You're going in the right direction. So just work hard, be focused, and you're going to turn around the tables for sure. For you Leos, it is going to be an amazing month, May 2025. So for Virgo, May 2025 month comes up with 5 of Wands, 6 of Pentacles and 6 of Wands. So conflicts है, abundance भी है and celebration भी है. सो देखते हैं कि क्या आपके लिए डिटेल में मैसेज यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. सो नंबर 1, योर पास्ट एनर्जी लुक्स लाइक यू बीन थ्रू, यू नो, some sort of a conflict with people around you. Maybe you're going to face those conflicts again in this month also with people around you as number 5 comes. तो इनर कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स विद पीपल अराउंड यू भी हो सकता है रिगार्डिंग सम डिसीजन मेकिंग दैट इंक्लूड्स यू बीइंग लॉजिकल रादर इमोशनल. मतलब आप कहीं पर लॉजिकली सोच रहे हैं जबकि आपको थोड़ा इमोशनली सोचने की ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि जो भी इशू है ये आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है. आप पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है. नंबर 2, इट लुक्स लाइक कि जो भी आप डिमांड करते हैं इस महीने, लाइक यू वट एवर यू डिमांडेड विल बी फुलफिल्ड. Either you will be in a position to fulfill that, या आप जिस भी अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं प्रोफेशनली या पर्सनली भी जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं, आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ होगी. यू विल ऑल्सो रिसीव, यू विल ऑल्सो बी एबल टू गिव. सो यू नो, इट्स जस्ट दैट could be from your mentor, guide or leader would be in a position to get you what you have been expecting, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. Number 3, this month comes with some sort of a good news as well. You will be celebrating something, और you know, कुछ आप मूवमेंट में भी है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और people around you will congratulate you for something. Could be you hitting a milestone, कुछ प्रमोशन भी हो सकता है, financial abundance भी हो सकता है, major achievement है for sure. It can be a sign of celebration in your personal life as well. When you face conflicts, but end of the day you came out winning with some sort of a support around you. But end of the day जो 6 of Pentacles और 6 of Wands है, ये बहुत strong energies हैं आपके लिए, and at the same time it's coming with a lot of hope, love, opportunity, you know, you being hitting some sort of a great milestone या कुछ ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं हासिल करना,
और उसको हासिल करने के बाद you yourself will feel that you're being celebrated. You've hit some sort of a milestone for sure. So that sort of an energy is coming in your way in the month of May, Virgo. Look forward to this. So let's see for Libra what exactly the universe is showing for the month of May. So universe actually showed 7 of Swords, the Lovers, 5 of Wands, 8 of Wands. So number one message आपके लिए है, you might take decisions to move around or travel. ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा plan करें, leaving things behind. Could be a movement to a place where you cannot move fully, instead leaving things, memories, milestones behind. It can also be a sign of deceit around you. So मतलब in a way that you should not be relying on people जो भी आपके आसपास हैं. तो कुछ तरीके का, किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है आपके साथ. आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया जा सकता है. एंड लोग जो हैं वो आपको बैक स्टैप करने का भी प्लान कर सकते हैं इस मंथ. सो जस्ट बी वेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू. डू नॉट ट्रस्ट पीपल राइट अवे. बट एंड ऑफ द डे वट एवर द बिटर एक्सपीरियंस इज, जस्ट टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मूव अलॉन्ग, बिकॉज दैट्स वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. नंबर 2, ऐसा लग रहा है दैट आप एक बहुत ही अच्छा रेपो शेयर करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, लाइक फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लव, एंड इट्स ग्रेट लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर श्योर. आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई क्लोज वंस भी हो सकता है, because it's a lover's card. So of course it directly tells you about the other gender, like the partner that you have. So end of the day it brings in affection की energy, togetherness, ये सब कुछ आपके साथ इस महीने होने वाला है. नंबर 3 मैसेज जो है लिब्रा के लिए वो है कि आप में से कई लोग कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर सकते हैं, मे बी एट वर्क, वे यू एंड अप, आप अपना प्रूव करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को. एट द सेम टाइम बाकी भी जो आपके सामने हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करेंगे. सो इन अ वे जब आप डिफेंसिव होंगे तो it will create the situation of conflicts. It looks a bit tensed, however end of the day just understand that जो भी कुछ होता है ना, या जो भी कुछ हो रहा है वो हमें ग्रोथ और बैलेंस की तरफ लेकर जा रहा है. एंड ऑफ द डे एज आई सेड, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं इस महीने टू अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर. मोस्टली एयर ट्रैवल दिख रहा है, but yeah, I mean it's an energy of traveling. So look forward to the month of May, Libra. So for Scorpio, May month comes with 7 of Cups, the Strength, 4 of Wands. So ऐसा लग रहा है कि आप you're planning for something, like कुछ ऐसा ड्रीम है जिसके लिए आप बहुत सीरियस हैं. आप डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं उसको, मतलब आपका ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ. जो भी माइलस्टोन्स हैं फाइनेंशियली मेजरली, बट द स्ट्रैटेजी जो है आपकी इट इज़ नॉट इन प्लेस. सो यू नीड टू वर्क हार्ड. उसके लिए आप मेहनत कीजिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए. यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको थॉट्स और आइडियाज़ तो आ रहे हैं, आप डिस्कस भी कर रहे हैं, बट अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए सिर्फ डिस्कशन काफ़ी नहीं होता है. आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन प्लेस करके वर्क करना पड़ेगा इन दैट डायरेक्शन. एंड फ्रॉम यूनिवर्स इट्स अ गुड साइन, बिकॉज universe is saying you're in the right direction. It's just that think through strategically and then move on. नंबर 2 मैसेज, इस महीने थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि जो एनर्जी है टैरो के थ्रू जो यूनिवर्स ने दिखाया है, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां आप अपना यू स्पीक योर माइंड, बट एट टाइम्स क्या होता है कि स्पीकिंग वुड रैदर क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो अपने जो भी इमोशंस हैं उनको चैनलाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए. जो भी नेगेटिव इमोशंस एकदम से आते हैं, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, या यू फील लाइक प्रूविंग योर पॉइंट और स्टेटिंग योर माइंड, आप रिफ्रेन कीजिए उस समय, बिकॉज अगर आप वो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पीस भी इम्पैक्ट होगा और सामने वाले का भी. सो इट्स बेटर, आई मीन मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर पीस एंड काम राइट नाउ. सो इट्स ओके टू लेट इट गो एंड चैनलाइज योर एनर्जी एंड योर इमोशंस इन अ बेटर वे. इफ बीइंग meditative and being spiritual helps, then why not? Should go for it. Number 3 message for you, the energy
somewhere says that you will certainly be a part of a celebration. जैसे कोई गेट टुगेदर होती है या कोई पार्टी होती है, कोई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस महीने, जहाँ पर यू आर गोइंग फॉर एन आउटडोर सेलिब्रेशन. घर पर तो नहीं दिख रहा है सेलिब्रेशन, बाहर ही दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं ये मैरिज कार्ड भी हो सकता है कई लोगों के लिए एंगेजमेंट भी हो सकती है. बट कोई एक अमेजिंग माइलस्टोन फॉर श्योर है जो आप सेलिब्रेट करेंगे इस महीने, बिकॉज आपकी एनर्जी सर्टेनली ये दिखा रही है. एंड दिस मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग अबंडेंस एज वेल इन योर लाइफ. सो ऑल द बेस्ट. फॉर सैजिटेरियस, May month comes with the Hermit, Wheel of Fortune, Three of Wands. तो आपकी पास एनर्जी कहीं ना कहीं बता रही है that you are being exhausted. या मेडिकली आप लोगों में से कई लोग हैं जो मे बी अनफिट है एंड स्ट्रगल कर रहे हैं in terms of keeping your mental health and physical health in place. यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये इशारा कर रहा है that if it is becoming exhausting, then take a break from your work or whatever is exhausting you. For some of you it could also be जब आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं चीज़ों के बीच में, you read too much in between the lines, then also the same problem happens where you go to an extent जहाँ आप mentally बिल्कुल exhaust हो जाते हैं and it's not really needed at all. Number 2, your luck is really strong this month. So whatever you will plan, you will be successful. जो भी आप decisions लेंगे, energies आपके favor में हैं, and it's somewhere the assurance of Almighty as well that is with you. And अगर कोई new beginning है, कोई नया काम है जो आप शुरू करना चाहते हैं, कोई job है, कोई offer है आपके सामने, so just go ahead and grab it, do it, go for it. It is bringing the fortune in this month for sure. Number 3 message. ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोग ट्रैवल भी करेंगे इस महीने टू एक्सपैंड योर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स प्रोफेशनली, और मे बी कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए क्लाइंट्स हैं जिनको ऑनबोर्ड करने के लिए यू माइट हैव टू ट्रैवल टू अ डिफरेंट लोकेशन. और ये भी हो सकता है दैट यू माइट बी हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ मूविंग टू अनदर कंट्री और अनदर प्लेस. अगर इस तरीके की कॉन्वर्सेशन हो रही है, so and you're confused also whether to do it or to not do it, then the universe is saying that अभी आप जहाँ हैं वहाँ पर आप perfectly settled हैं. कोई भी decision आप rush में ना लें, because as per the energy, even if you take that decision, the long term the kind of outcome which is coming might not be in your favor. So it is okay to stop, take a pause, think through, थोड़ा analyze कीजिए चीज़ों को, and then only take a call to move in that direction. But overall, the kind of energy that comes for Sagittarius for this month looks amazing. It's just that थोड़ा सा आप rest दीजिए खुद को, ज़्यादा सोचिए मत, अपने physical और mental health का ध्यान दीजिए, because you're on the verge of breaking right away. At the same time, your luck is really, really strong. So all the best. So for Capricorn, May month comes with 10 of Swords, the Chariot, the Star. So as per the energy, number 1 message जो है आपके लिए, आपकी past energy से ऐसा लग रहा है कि आप you've been thinking about your past experiences from quite some time. We have been, आपको backstab किया गया, आपके trust का लोगों ने फ़ायदा उठाया है, you broken multiple times. बट एंड एट द सेम टाइम आप उन एक्सपीरियंस से ना कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं. यू फील लाइक यू रियली डोंट वांट इट अनदर टाइम. बट ऑन द अदर हैंड द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप उन पास्ट एक्सपीरियंसेस में ही बिजी रहेंगे, एनालाइज करने में दुखी रहेंगे, पेन में रहेंगे, it is not going to help you to move on. So it's better for you to look at the other side. You do have a beautiful beginning and it is full of assurance that it is going to take you to abundance. आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, राइट. सो आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ना यहाँ पर सैड लग रही है एंड थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हैं. डोंट डू दैट, जस्ट मूव ऑन, टेक द experiences with a pinch of salt. आप लोगों में से कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है that you've made up your mind for something like a decision, कुछ ऐसा आपने लिया है, you are on that path with full focus, determination. आप बहुत dedicatedly
मूव कर रहे हैं उस पाथ पे। एंड इट्स ग्रेट कि आप फोकस्ड हैं, आपने वो डिसीजन लिया है और आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत क्लियर हैं अपनी थॉट प्रोसेस में कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है, ये डिसीजन लिया है तो यही करना है, कहीं और मूव नहीं होना मुझे, विच इज़ गुड। बट कई बार क्या होता है, जब हम इस तरीके के डिसीजंस लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम सही गलत, अच्छा बुरा, इस सब का फ़र्क भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर उस पाथ पे हैं, इट्स ओके टू बी एंड इट्स गुड टू बी ऑन दैट पाथ अगर आप बिल्कुल इंक्लाइंड हैं, बट कीप अ बैलेंस इन योर माइंड एंड हार्ट एज वेल। नंबर 3, आप में से कई लोगों के लिए could be 2 major breakthroughs this month, like people who have applied for jobs, उनको 2 offers आ सकते हैं, और someone working really hard to crack let's say 2 opportunities, कोई भी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं या 2 क्लाइंट्स मिल सकते हैं। किसी तरीके का अचीवमेंट आपको 2 डिफरेंट एरियाज़ में मिलेगा अपनी लाइफ में इस महीने कैप्रिकॉर्न, एंड इट्स इंडीड अ ग्रेट एनर्जी। ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी अ स्टार इन दिस मंथ, एंड आप कोई माइलस्टोन सर्टेनली हिट करने वाले हैं, लाइक अ रिवॉर्ड और एन अवार्ड, जो भी कुछ है, बट इट इज़ कमिंग विद फुल ऑफ अबंडेंस एंड डेफिनेटली अश्योरेंस फॉर यू ऑल। Aquarius, for you, May month comes with Judgment, 3 of Wands and 10 of Swords. So your past energy shows some major breakthrough. ऐसी कोई चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, आपको वो आउटकम मिला है, and that was something that you've been waiting for. So the results have come out and definitely in your favor. Universe was constantly working in the background to get things in your favor also. But now because now when you have it in front of you, आपको मैं बता दूं कि आप अकेले नहीं थे इस जर्नी में। आपके ancestors, आपके supporting souls, आपके guiding angels, everyone was praying for you and everyone was praying for your victory. या ऐसा भी हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के लिए कि आप जो भी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं या कोई और भी आउटकम जिसका आप वेट कर रहे हैं, इस महीने आपको कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिलेगी विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इन योर फेवर एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ माइलस्टोन फॉर श्योर। Number 2 message, you will certainly be traveling this month. आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए पॉसिबल है कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े इस महीने, यू मूव टू सर्टन प्लेसेस, बट एट द सेम टाइम हो सकता है ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हो वेयर यू आर आस्क्ड टू मूव टू अ सर्टन प्लेस। सो इन दैट केस इवन इफ यू आर कन्फ्यूज्ड एंड यू वांट टू टेक अ डिसीजन, डोंट डू दैट इन अ हरी, बिकॉज यूनिवर्स आपको ये कह रहा है जस्ट डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन अ हरी, टेक अ पॉज, थिंक थ्रू, देन ओनली आप ऐसा कुछ डिसीजन लीजिए, बिकॉज क्लियरली यूनिवर्स ये दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। और लास्टली यू विल ऑल्सो बी लुकिंग बैक एट योर वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, द स्कार्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, पीपल बैक स्टैबिंग यू एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर ट्रस्ट। सो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको इस तरीके के थॉट्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, देन यू नीड टू स्टॉप सेंडिंग एनर्जी टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। इंस्टेड फोकस ऑन वॉट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। मोर एनर्जी अगर आप देंगे उस डायरेक्शन में तो सेम एक्सपीरियंसेस को ही आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो जस्ट लेट इट बी, सम सॉर्ट ऑफ साइकिल इज कमिंग टू एन एंड इन योर लाइफ, सो जस्ट मूव ऑन इवन इफ यू डोंट if you're really doing it just for the sake of doing it, don't give up, just move on even if it's slow. So for Pisces, May 2025 month comes with 6 of Pentacles, 4 of Cups, the High Priestess. So number 1 message for you Pisces, professionally थोड़ा सा interesting है आपके लिए, and थोड़ा नहीं, in fact it looks interesting as either you will be in a state of mind to have that authority कि आप कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाएँ, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें, या आप किसी की कुछ विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल कर पाएँ लाइक अ लीडर। और ये भी हो सकता है कि आप जिनको रिपोर्ट करते हैं या आपका लीडर है या आपके आसपास ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी में है जो आपकी विशेज़ फुलफ़िल कर सकते हैं इस महीने, लाइक जैसा आप चाहते हैं फॉर श्योर। बट आपके लिए फिनेंशियल गेन्स सर्टनली आती दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं दैट यू आर लुकिंग फॉर सर्टनली इन दिस मंथ।
नंबर 2, ऐसा ऑल्सो लग रहा है दैट यू विल बी रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ अ हेल्पिंग हैंड और एन ऑफर फॉर समथिंग, बट आप बिजी हैं लुकिंग एट योर एक्सपेक्टेशन. तो हो सकता है कि when you do that, you might skip paying attention to this person. So universe is saying somewhere that कि ये ना एक बहुत ideal help है. आपको जिस तरीके का support चाहिए, जिस तरीके का आपको help चाहिए, ये वही है. So just pay attention, and it could also be about emotional support. जैसा मैंने कहा कि some of you could be in a position where जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि you're able to offer things to other people, and if somebody is offering you something, you're busy meeting those expectations, so you might skip looking at those things. Lastly, it feels there might be a situation this month where you need to keep your peace and calm intact. और it tells about कि कोई एक spiritual lady है आपके आसपास who loves doing meditation. She is deeply connected with her soul and the source of light. So अगर आपको अपना peace regain करना है, I mean if that woman is you, then it's perfect. But if you're a male, then you certainly would need to connect with this person to regain your peace. Maybe आप उनसे बात कर सकते हैं अपनी situation के बारे में, and also universe somewhere is telling you to embrace this energy, meditative energy. आपके लिए universe certainly work कर रहा है in the background to get betterment in your life. So trust the universe. So basically for you, time will unfold the decisions for you here, Pisces. So this is how it is going to be for you, May 2025. So if you've been watching my video, thank you so much for watching this. I hope the guidance जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है आप उससे कनेक्ट कर पाए हो. डू फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हियर, और यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक. मैंने अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल का जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है. प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, एंड डू फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी यूनिवर्स से जो भी गाइडेंस मिल रही है उनके ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे उससे कनेक्ट कर पाएँ. For any personal booking for tarot session or akashic reading session or automatic writing, do feel free to message me on my Instagram, on Facebook, and I'm happy to do it for you. और आप मेरी वेबसाइट पे भी जाकर बुकिंग कर सकते हैं. अपनी वेबसाइट का मैंने लिंक इस वीडियो के शुरुआत में भी शेयर किया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है. आई होप आप लोगों के लिए मई मंथ अमेजिंग अबंडेंस लेकर आए, अमेजिंग एनर्जी लेकर आए.